सोल्यूशन, आपको ऑलरेडी पता होगा कि सोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, आपको ये पता होगा या हाँ बोलो, solvent and solute. Very good. Now, how do you define a solvent? How do you identify a solute or a solvent? Maximum quantity of anything in a mixture is dubbed to be as solvent. Okay. And the thing which is added to the solvent is dubbed to be as solute. Okay. So, if I can say this, there are two cases. Case 1, if one substance is dissolved in another, मतलब कोई एक सब्सटेंस दूसरे पे डिसॉल्व कर, पर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, अनदर, देन इसको मान लो मैं A मान रहा हूं, उसको मैं B मान रहा हूं, देन यू विल से A इज अ सॉल्यूट and B is a solvent. Very well, clearly said. जैसे एग्जांपल अगर आप NaCl in water अगर आप करते हो, तो you will say अच्छा ये लिक्विड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड NaCl जो होगा आपका एक सॉल्यूट हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं. if A and B जो आपने लिया है are soluble in each other, मतलब ये एक दूसरे में soluble हैं, A B में soluble है, B A में soluble है, then आपने बोला जैसा कि जिसका अमाउंट ज्यादा है, the one having higher amount is basically your solvent and other are is solid. ये बहुत ही क्लियर कट आपने डेफिनेशन बता दी. वेरी गुड. Let us try to understand with some example. Now suppose if I dissolve 20 grams of NaCl solid in 100 grams of water, या 100 या 1001 of water. You have to identify the solute and solvent in each case. Okay? एक ये हो गया. दूसरा है 20 grams या गैसियस मिक्सचर की लोग बात कर लें. मिक्सचर में 20 grams ऑक्सीजन है and 80 grams N2 है. ये आपके मोबाइल में विजिबल नहीं है. आप अपना मोबाइल को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में ले आइए तो आई थिंक इट विल विजिबल. आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आइए. आया? तो बेटा अब आपको हम जो एग्जांपल दे रहे हैं उससे तो समझने की कोशिश करते हैं. आप इस चीज को कैसे समझते हैं? ठीक है, गैसेस मिक्सचर है, 30 grams O2 and 30 grams N2. 4 गैसेस मिक्सचर है, 6 grams of H2 and 30 grams of O2. And fifth है H2 adsorbed on platinum. Yes. जो आपने बोला मैंने यहां पे लिख दिया. ठीक है ना. अब ये एग्जांपल है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई which is your solute and which is your solvent in each case. In first case, 20 gram of NaCl will be the solute and 1000 ml of water will be the solvent. Okay, good.
In second case, Sir, both are gases. soluble. तो ये आपका आपने बोला दिस इज योर solute and this is your solvent. Okay. यहाँ से तो बहुत क्लियर था. अब इसमें बताओ. 80 gram of N2 will be solvent and 20 gram will be solute. Very good. तो बहुत इजी हो गया. Okay, very good. अब इसमें बताइए. Yes, both are same, no? Both are same 30 gram, 30 grams. Which is solid, which is solvent? Anything can be solute or anything can be solvent, or oxygen is solute. क्या लगते हैं? Anything, any of the two. Okay, you are saying any of the two. Is solvent. What is this? ये आप इसका बोल रहे हो, आपका स्टेटमेंट ये है, ठीक है. इस पे 30 gram of O2 will be solvent and 6 gram of H2 will be solute. okay, very good. You are saying 30 grams here and 6 grams solute. Okay, and here Platinum will be solvent and H2 will be solute. excellent. ये बिल्कुल आपने सही बोला. ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका है. वेरी गुड. ये आपका वेरी गुड. दिस इज गुड, बट दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. यहीं पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट. यू हैव सेड वन कीवर्ड, हायर अमाउंट. ये आपने वर्ड बोला था ना. Yes, sir. एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? Mole. Mole. So mole should be the one which should decide, na? Not the grams. And here the mole is 30 upon 32, and here it is 30 upon 28. समझ में आया? Yes, sir. So this is the wrong आगा interpretation कि हम लोग amount को ग्राम में रख देते हैं. That is wrong. Here 30 grams means 30 by 32, that is less than 1. Here 30 grams of N2 means 30 by 28, which is slightly more than 1. So this is higher, this is lower. So this is wrong. The answer is N2 will be here acting as a solvent. Clear? Concept clear हुआ? Yes, sir. ये आपका सॉल्यूट. यहाँ पर this is 3 moles. 3 moles and here Is it? 0 point something. Okay. तो ये क्या हो गया आपका? आपको समझ में नहीं आ रहा है. 6 ग्राम ही तो है बस, but 6 grams means 3 moles. So this is in higher quantity. So H2 will act as a solvent, not solute. Clear? The concept is clear. तो solvent and solute को हमेशा आप अगर देखोगे तो अगर कोई एक चीज दूसरे को डिसॉल्व करता है एंड वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू, देन वी से कि जो डिसॉल्व कर रहा है दैट इज योर सॉल्वेंट, और डिसॉल्व जो हो रहा है दैट इज योर सोल्यूट. बट इफ बोथ द थिंग्स आर इक्वली सॉल्युबल इन ईच अदर, हाँ अलग अलग रेशियो में हो सकता है, देन amount should always refer to mole. The best thing should be, you should talk about mole fraction. You should talk about mole fraction. Clear? ध्यान रखिए. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay. So हम लोग अपना डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं. The one having, लिख लीजिए केस, इसमें केस 2 वाले में, the component having higher mole fraction या highest mole fraction, highest mole fraction in the given mixture, will act as
solvent will act as solvent and the others जो भी और प्रेजेंट होंगे will be treated as solute. Will be treated as solute. Example: suppose a mixture contains 50 grams N2 plus 50 grams O2 plus 5 grams H2. ठीक है? The question is which is solute, which is solvent. Solvent एक ही होता है, solute बाकी सब हो जाएंगे. क्या करेंगे? इसका हम लोग मोल्स निकालेंगे, ठीक है ना? This is 50 by 28. ठीक है? This is 50 by 32 and this is 5 by 2. Clearly, हाँ, ये 2.5 हो गया, ये less than 2 है, ये less than 2, इतना हमें पता चल गया. So your hydrogen is solvent and other two are solute. Clear? Yes, sir. Okay, very good. This is the first part, that is to understand which is solvent, which is solute. हटाएं इसको, एक बार लिख लीजिए, इससे हटाता हूं इसको. Done? लिख लिया? Yes, sir. Okay. Now, we know that what is the solution? Solution का पहले definition में हम लोग ने एक word बोला है. It is a homogeneous mixture. एक एक word को समझिएगा बेटा. Homogeneous mixture. So ये दो चीजें हैं. Question is what is mixture? And how it is different than compound? How is it different from compound? क्लास 9 का क्वेश्चन है. हाँ, बहुत इजी है यार, ये तो इजी है, क्या पढ़ा रहे हैं, बट क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तभी आगे की भाषा समझ में आएगी. एंड द सेकंड मीन, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनिटी? या homogeneous, what is homogeneous? What does homogeneous mean? दो क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर दीजिए. क्लास 9 का पार्ट है. Mixture is a material compound mixing of two or more compounds in any quantity. इन एनी क्वांटिटी मतलब Not in a fixed quantity. नॉट इन अ फिक्स क्वांटिटी. तो आपको लगता है कि मैं 100 ml में, ठीक है, चलो ये आप बात कर लिए, ठीक है. सॉल्यूशन बनाना है हमें, तो 100 ml वाटर में आप सॉल्ट डालते हो, 2 ग्राम भी डाल सकते हो, 10 ग्राम भी डाल सकते हो, 20 ग्राम भी डाल सकते हो, क्या 2000 ग्राम भी डाल सकते हो? No, till the point of saturation. ओके, गुड. तो सैचुरेशन लिमिट तक जा रहा होगा. हमें जो केस लेना है वो वहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है आपने कि यहाँ पर मिक्सचर में अगर आप वर्ड मिक्सचर बोलते हो तो एक बात समझ में आती है कि कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स, इज नॉट फिक्स. तो
You have to define the composition all the time. And अगर आपने बोला compound, तो इसका मतलब है composition fixed होता है. यानी अगर मैं H2O लेता हूं, I will say that percentage of H, अगर बात करोगे, it is always 2/18 into 100. That is equals to 11.11%. And percentage of oxygen is 16/18 into 100, which is nothing but 88.89%. That is fixed. अब इस वाटर को आप कहां से ला रहे हो? आप चाहो तो अपने नल के पानी से निकाल लो, आप चाहो तो बना लो एक्सपेरिमेंटली, चाहो तो आप ग्लेशियर से ले आओ, चाहो तो आप नाली से ले आओ, कहीं से भी अगर आपने पानी का अगर आपने एनालिसिस किया है, this is always fixed. So this is why it is called as a compound, not a mixture. Excellent, very good. What about this one? Homogeneity means of the same molecules. Same molecules. जरूरी थोड़ी ना है. Here is a homogeneous mixture. N2O2 CO2 अगर सबसे बना हुआ है. Homogeneous. What does homogeneous mean? Homogeneous मतलब जो भी composition बन गया एक बार, मान लिया आपने रख लिया, you can add and you can change it. But अगर एक बार जो बना दिया आपने, add कर दिया, composition जो बन गया, then it is having same composition throughout. जो भी आपने रखा है, 1 ग्राम मिला दिया तो कुछ ना कुछ तो आ गया होगा हर तरफ, फैल गया होगा. तो सेम कॉम्पोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर. है ना? इसका मतलब होता है होमोजीनियस. फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी लिया है और इसमें आपने क्या किया, ऊपर से सपोज आपने एक छोटा सा चीनी का इतना बड़ा सा एक चक्का आपने डाल दिया, छोटा बॉल डाल दिया, शुगर क्यूब डाल दिया. अभी ये हिट्रोजीनियस होगा बिकॉज ये आपका सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है. आफ्टर सम टाइम ये चीनी जो है वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट, आप चाहे सैंपल यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे कहीं से लो, एवरीवेयर वो उतना ही मीठा रहेगा जितना यहां पर. मतलब आपने अगर सैंपल इस पॉइंट से लिया ए, चाहे इस पॉइंट से लिया बी, चाहे इस पॉइंट से लिया सी, एवरीवेयर द कॉम्पोजिशन विल बी सेम. मिठास उतना ही रहेगा कहीं से भी आप टैप कर लो. दैट इज द कॉम्पोजिशन पार्ट, कि जो भी चीनी आपने मिलाया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू आउट द मिक्सचर. अब एक चम्मच और डालोगे तो फिर फैल जाएगा, हर जगह मिठास बढ़ जाएगी, ए बी सी की मिठास बढ़ जाएगी. पर अगर वो होमोजीनियस है तो अब भी नेक्स्ट टाइम भी उतना ही मीठा रहेगा, मतलब उसकी मिठास ए बी और सी में एग्जैक्टली सेम रहेगा. समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. Okay, so this is homogeneity. Yeah, homogeneous. The term homogeneous term means that same composition throughout the mixture. अब क्वेश्चन उठता है, क्यों पढ़े, इसकी क्या फायदा है, मुझे जबरदस्ती क्यों करा रहे हैं? The problem here is what we are treating a solution which is a homogeneous mixture और उसमें सॉल्यूट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफाइन नहीं हो पाता है. अब वो डिफाइन नहीं हो पाता है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सॉल्यूट इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपने देखा होगा होम्योपैथी वाले मेडिसिन पे लिखा होता है 30x, देन अलग लिखा होगा, है ना, 30C लिखा होगा, सो ऑन. तो कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कॉन्सेंट्रेशन क्यों बताया जाता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं?
सॉल्यूट के बारे में जानने के लिए। तो सॉल्यूट जो भी होगा उसका कॉम्पोजिशन कितना है किसी भी मिक्सचर में, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन इन अ मिक्सचर, दिस इज नॉट नोन, है ना। मैंने आपको मान लो एक गिलास में एक कुछ चीनी डाल के दे दिया, तो क्या आप बता पाओगे कि कितना चीनी डाला है मैंने इसमें? अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो कि यार इसका वॉल्यूम कितना, वेट कितना है, मैंने कितना डाला, मिठास कितना आ रहा होगा, तो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन आप नहीं निकाल पाओगे, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में कि कितना डाला गया है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ड्रग्स में अगर आप देखोगे तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ और बिहेव करते हैं, हायर डालो कुछ और बिहेव करना शुरू करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बट द प्रॉब्लम इज composition is not fixed, it is not fixed, so not fixed होने के कारण से we have to have some other data that is called as concentration। अगर मुझे सॉल्यूट के बारे में जानना है कि ये इस गिवन सॉल्यूशन में कितना है, then we should go for another data जो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे या जैसे भी होगा मिलेगा आपको, which is called as concentration। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट फंडा आता है concentration का। अगर मैं आपसे बोलूं concentration का मतलब आप क्या समझोगे? बहुत सिंपल, concentration gives information about solute। हाँ, बहुत सारा तरीका होता है, मैं अभी बता रहा हूं कैसे कैसे। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सॉल्यूट। यहां तक समझ में आ रहा क्यों जरूरत पड़ा कॉन्सेंट्रेशन का? Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन उठता है, हाउ डू यू डिफाइन दिस, इसको कैसे हम लोग बनाया जाए? कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो कि अमाउंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुड बी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो भी आप टर्म बनाने वाले हो, एक तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट टेकन। बात समझिएगा, ऐसा ना हो जैसे आप चाय अगर आप बनाते होगे तो आपने देखा होगा कुछ लोग मीठा चेक करने के लिए थोड़ा सा एक ड्रॉप निकाला, चेक कर लिया और बोलते हैं कि अगर ये मीठा है तो पूरा यूनिफॉर्मली उतनी मीठा हो, है ना। तो अगर आप ऐसा ना हो कि पूरा चाय पी के बताना पड़े भाई कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो फायदा क्या होगा? तो मैं एक बूंद निकालूं या थोड़ा सा सैंपल साइज निकालूं या खूब सारा निकालूं, फर्क नहीं पड़ता, the behavior should be same। so it should be independent of amount taken। amount किसका? सॉल्यूशन का। थोड़ा सा लो ज्यादा लो, एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप थोड़े से अमाउंट में करते हो, ठीक है। इट शुड बी कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं तुरंत चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए इंडिपेंडेंट करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है? बेहतरीन तरीका होता है मैथमेटिक्स में, you define it as a ratio। the best way is to make something independent of denominator or something like that is to have express this phenomena या this parameter as in terms of ratio में होगा तो चीजें आसान हो जाए। क्या देखते हैं? Because of these two characteristics, अगर आप देखोगे the concentration terms are defined in terms of ratio। जैसे आपने मोल फ्रैक्शन बताया, अब रेशियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। रेशियो आपका दोस्त है, याद रखना। रेशियो किसी भी चीज का अगर निकालते हो, ए बाई बी का रेशियो निकालते हो,
ये बहुत ही प्यारा चीज है, डर लगता है पर है बहुत प्यारा। क्या? एक तो जनरली अगर क्या होता है, ये यूनिटलेस हो जाता है अगर ए और बी सेम जैसा हो। अगर नहीं भी है, इफ नॉट, then it indicates some information about numerator and denominator. जैसे मान लो इसका है ग्राम पर एमएल। सपोज एग्जांपल है, मान लो मैं बोल रहा हूं ग्राम है पर एमएल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि न्यूमरेटर जो है वो आपका वेट के फॉर्म में है, तभी तो ग्राम है, और जो डिनोमिनेटर है डीआर में लिख रहा हूं, दैट इज वॉल्यूम के फॉर्म में है। बात समझा रहा है? तो एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है इसका यूनिट अगर है तो। दूसरा चीज है, इट मेक्स द फैक्टर जो भी आपका रेशियो आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बी। बी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर बी 10 लिया, फॉर एग्जांपल मान लो रेशियो अगर सपोज आपका 2:1 है, तो बी अगर आपने 10 लिया है तो ए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बी अगर आपने 20 लिया है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो बी कितना ले उससे फर्क नहीं पड़ता, सिंगल ये कितना फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा सेम आने वाला है। तो ये दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा किस फॉर्म में रखते हैं? रेशियो के फॉर्म में। अब बताना किसके बारे में? याद है, लिख लिया? लिख लो पहले। Yes, sir. ओके, यहां तक लिख लिया। सो कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए? तो नेक्स्ट लिखिए, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। Expressing concentration terms. Now, understand the concept. Now, concentration को क्या करना है? It should give information about what? About solute. So, the best representation can be either it is represented as solute, bisolvent, or it can be represented as expressed as solute by solution. Very good. इसका सोल एग्जांपल हमको पढ़ना है वो है मोलारिटी। फुल एग्जांपल, बस एकमात्र एग्जांपल हमें पढ़ना है। इसका हो जाएगा मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, देन ग्राम पर एमएल, ऐसे बहुत सारे। ओके, ये हो गया पहला एस्पेक्ट कि हमें ऊपर क्या रखना है? सॉल्यूट को, ये सॉल्यूट इंफॉर्मेशन ऊपर, और नीचे रखना है सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन। वेरी क्लियर, क्लियर? अब इसका कौन सा इंफॉर्मेशन रखोगे आप? तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, concentration can be again classified into three different parts. भाई सॉल्यूट का क्या रखा? वेट रखा, वॉल्यूम रखा, क्या रखा? सॉल्वेंट का क्या रखा? वेट रखा, वॉल्यूम रखा। सॉल्यूशन क्या रखा? वेट रखा, वॉल्यूम रखा। So the best way is to understand in this form. Either it is expressed in weight by weight form, or weight by volume form, or volume by volume form. Clear? Weight by weight form, weight by volume form, और volume by volume form. अब इसमें कौन कौन सा आता है बेटा? पहला आएगा मोलालिटी, दूसरा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको समझ जाइए,
कुछ ना है कुछ लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन। तीसरा आएगा परसेंटेज बाय वेट। चौथा आएगा पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। ppm। वेट बाय वॉल्यूम में आएगा, पहला आएगा मोलारिटी, सेकंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, तीसरा आएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या समटाइम्स ये आएगा पार्ट्स पर मिलियन, ppm। नॉर्मली किसके लिए होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है? लिक्विड्स के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसको बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि अभी जब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सारा कैटेगरी। इसको याद करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। फटाफट लिख लीजिए। Then, sir. ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मोलारिटी को। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा अभी तक सब? Yes, sir. ओके, so let us start with weight by weight forms. Weight by weight forms. Okay, the first one is molality. What is defined? It is defined as, पहले मैथमेटिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन, इट इज नंबर ऑफ, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Number of moles of solute in a solution upon weight of solute. weight of Solution. Sorry, weight of solvent in kg. in kg, ठीक है। अब कोई पूछे इसको डिफाइन कैसे करें, तो मैथमेटिक्स में बेटा अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो डिफाइन करना बहुत आसान होता है। बेस्ट वे इज डिनोमिनेटर को 1 रख दो, तो न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा ये। तो क्या लिखोगे? मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इजी, number of moles of solute per kg of solvent, number of moles of solute per kg of solvent, clear? Yes, sir. Okay, तो ये बहुत इजीली आपने डिफाइन कर दिया। It is defined as number of moles of solute per kg of solvent. Wait, let us take some examples. Suppose देखिए, if a solution is formed by dissolving 18 grams of glucose in 500 grams of water,
then molarity of solution is बताइए। देखो नोट करो क्या होगा, वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन कितना है बेटा, इट इज 18 ग्राम। ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, उसको याद रखिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। देयरफॉर मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा बेटा, अभी मैं मोल्स को ना हमेशा n लिखूंगा, n मतलब ग्लूकोज का मोल्स, आए किसी का ही मोल बोलो, n जी लिख दिया मतलब ग्लूकोज का, दैट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन molecular weight, that is equals to 18 by 180 which is equals to 0.1. Now weight of solvent कितना हो जाएगा, 500 gram upon 1000 is equal to 500 grams per 1000 kg. Okay, 500 divided by 1000, very good, which is equals to 0.5 kg. Excellent, very good. तो बेटा आप ये बताओ मोलारिटी कितना हो जाएगा, ओके 0.5। तो आप बोल रहे हो मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H2O इन kg which is 0.1 divided by 0.5, ये है ना, कितना आएगा वैल्यू देखो तो ध्यान दो, तो 1/5 आ रहा है, which is 0.2 आ रहा है। देखो ये सब क्वेश्चन गलत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे स्मॉल m। तो अब एस्पेक्ट आता है यूनिट का, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, इट इज मोलल और स्मॉल m और मोल पर kg सॉल्वेंट, मोल पर kg सॉल्वेंट। क्लियर है, Sir, yes sir. okay. एक और क्वेश्चन कीजिए, find the molarity of solution, find the molarity of solution formed by dissolving 3.42 grams of sucrose, 3.42 grams of sucrose in 100 ml of water, in 100 ml of water, full stop. Take density of water as 1 gram per ml। कभी नहीं दिया हो तो आप यही हमेशा मानते हो 1 ग्राम पर ml। फटाफट कीजिए,
वेट ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है कितना 3.42 वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है नहीं पता वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 100 ml डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है we have to find the molarity एक क्वेश्चन है ना कैसे होगा बेटा गिवन तो भाई है हाँ बोलो ओके from given data we can find the weight of H2O कितना होता है बेटा volume of H2O into density होगा वॉल्यूम कितना है बेटा 100 into 1 ग्राम पर ml कितना हो गया इट इज 100 ग्राम्स हो गया yes or no okay that is equals to 100 by 1000 okay now सुक्रोज क्या होता है बेटा C12H O तो कितना आएगा 342 ग्राम्स पर मोल ओके तो इससे आप मोल्स निकाल लोगे मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना है बेटा ओके वेरी गुड it is equals to 3.42 divided by 342 this is the one 0.01 moles तो मोलारिटी कितनी होगी बेटा weight of solvent 0.01 upon 0.1 कितना आया 0.1 मोलर क्लियर है एक्सीलेंट वेरी गुड तो इस चीज को मोलारिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ताकि कंफ्यूज मत हो जाना moles of solute divided by weight of solvent in grams 4 into 1000 इसको भी आप यूज कर सकते हो मतलब चीज वही है कभी कभार आपको आराम दे देगा ठीक है Yes, sir. ओके वेरी गुड एक क्वेश्चन और लिखिए लिखिए if if 1000 grams of glucose solution contains 1 mole of glucose 1 mole of glucose then find the molarity of the solution form is given solution method then find the molarity of the given solution
100 upon 82. 82. ऐसा क्यों? First of all, we have to find out the mass of solvent now. So, number of moles of glucose is given. So, by that we can find out the mass of glucose in solution. Very good. And then by using formula of molarity, we can find out the molarity. Moles into molecular mass. Yes. तो ये कितना हो गया? 1 into 180. 180 grams हो गया. Therefore, weight of solvent, that is water, is what? Weight of solution minus solute. Yes. Excellent. तो ये तो हो जाएगा 1000 minus which is how much? 820. Okay. देखो मोलारिटी कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ Mass of solvent in kg. ठीक है? Yes. That is equals to what? 1 upon 820 into 1000. Excellent, very good. Clear है? इसका जो भी वैल्यू आएगा आप देखोगे. But this is how we have to approach. Clear है? 1.2 something आ रहा होगा. जो भी होगा. So I hope बेटा it is clear. आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा इस जो जितना हम लोग पढ़े हैं. Yes, sir. Enjoyed? Yes. Okay, so thank you.